Hey everyone, welcome back to the channel. Today is amazing, just beautiful day. सुबह के 6 बज रहे, बाहर बारिश हो रही है, जुलाई आ चुका है and I am creating this video 23 lessons that I learned on my 23rd birthday. आज ही ये वीडियो शूट करूँगा, आज ही एडिट होगी, आज ही अपलोड होगी. प्लीज़ जाके देख लेना. थैंक यू सो मच. So okay, number one is taking responsibility of your own life. Since childhood we are told what to do, what not to do, and especially me, मेरे लिए बहुत लोग थे जिन्होंने रोड मैप बना रखे थे कि ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले. एंड यू नीड टू नो, आपको पता होना चाहिए कि इफ दैट इज रियली व्हाट यू वांट. इफ इट्स नॉट, यू एंड अप ब्लेमिंग एवरीवन एल्स. सो that is what I learned, taking responsibility. I need to know what my goal is, what my purpose is. Every day I need to work on that goal, on that purpose. Every decision of mine has to be around that goal, and that is how you take responsibility of your life. You do every day, you wake up and you do what you know is meaningful for you. That's it. ये सीखा मैंने. Number one, taking responsibility of your life. Number two is why it's important to get a work or get a job. And I'm not speaking just that 6 month to 1 year internship that your college told you to do. I am speaking of the skill, the ability to be able to sell something. Like आपको बेचने आना चाहिए, आपको बाहर जाकर लोगों से बातें करनी आनी चाहिए. And even if you do that 6 month to 1 year internship, you'll know that it gives you the exposure, it gives you the confidence that it's expose yourself as soon as you can. मैं यही बताऊंगा. और मैंने यही सीखा कि last year I started working. And every day I was speaking to 50 to 60 people, and that boosts my confidence. And I think there's nothing else that can do it. लोगों से बात करना is the sure way of boosting your confidence, improving yourself overall. Like, you start to learn so much from these people. You start to appreciate what they have experienced in their life. It's a completely different thing if you go outside and have work with other people. ये जो मैंने सीखा, a bad day is not a bad life. One day cannot define the existence of your entirety. ठीक है, कोई बात नहीं, एक दिन बुरा गया, nothing happens. I used to journal for this thing exactly. कि मैं एक दिन मैंने लिखा कि today was a bad day, today I had this, today this happened, that happened. And not precisely speaking, bad day का मतलब ये नहीं कि बाहर से कुछ हो गया. कभी कभार अंदर से भी आता है कि आज मन नहीं है बाहर जाने का, स्कूल जाने का, कॉलेज जाने का, कहीं कुछ भी करने का मन नहीं है. सो दैट इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ बैड डे. एंड व्हेन आई यूज्ड टू जर्नल, मैंने एक पेज पर जब लिखा कि टुडे आई हैड बैड डे, टुडे दिस हैपन, दैट हैपन, जस्ट उसके 2 पेज के बाद आई यूज्ड टू राइट कि टुडे वाज द बेस्ट डे एवर, टुडे दिस हैपन, टुडे आई हैड द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस. तो बस 2 पेज आगे अगर आपका गुड डे या फिर वन ऑफ द गुड डे आ सकता है, तो वो बैड डे डजंट डिफाइन योर लाइफ. जस्ट लिव विद इट, लर्न विद इट, एक्सपीरियंस इट एंड स्लीप इट आउट. लाइक, सो जाओ घर आके एंड नेक्स्ट डे डू योर 100% अगेन. द डे आफ्टर नेक्स्ट डे विल श्योरली बी योर बेस्ट. ये मैंने सीखा कि अगला दिन कोई भी बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आ सकता है, तो जस्ट वेट फॉर इट. Number 4 is live life with zero regrets. I started my YouTube channel last year. I graduated. I started my first job. Living life with zero regrets basically means to do everything that you know you want to do. आपको exactly पता होता है आपको क्या चाहिए. Just because of the overthinking, just because of the fear of failure, just because of the fear of what other people think, you might not do what you really want to do. आपको अपने आप को समझाना होगा कि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता. मैं भी सीख रहा हूँ. लाइक, इट्स नॉट कम्प्लीटली आई हैव लर्न, पर मैं कहूँगा कि लिव लाइफ विद जीरो रिग्रेट्स. एज इन, जब बात आती है कि ये तो करना ही है, कि ये एक्सपीरियंस मुझे चाहिए, देन आई डोंट थिंक ट्वाइस. कोई सेकंड गेस नहीं, बस करना है तो करना है. दैट्स इट. तो नंबर 5 इज द पावर ऑफ मीनिंगफुल कॉन्वर्जेशन. मैंने कॉलेज में रियलाइज़ किया था लास्ट ईयर व्हेन आई यूज्ड टू गो, एंड आपने देखा होगा व्लॉग्स में मैं ही हूँ और कोई है नहीं, क्योंकि मैं किसी से कन्वे नहीं कर सका कि हाय देयर, दिस इज़ आई हैव अ व्लॉग चैनल टू, और दिस इज़ माई व्लॉग चैनल, वुड यू लाइक टू बी इन माई व्लॉग और समथिंग. I am speaking of meaningful conversation as in when you say when you speak to more people. I did not speak to more people last year, and as I was coming closer to being 23, I started speaking to everyone else, putting myself out there, and it has the like huge benefits to you and to other person also maybe, but it does good. So speaking to more and more people is what I learned.
एंड ओके, नंबर 6 इज स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। जैसे कि मैंने कहा कि लोग आपको एडवाइस देंगे, आपको बताएंगे कि ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। यू शुड नो कि आप वही कर रहे हो जो आपको पसंद है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है। आप किसी और के दबाव में आके कुछ नहीं कर रहे हैं, या फिर आप सोच रहे हो कि नहीं वो सही बोल रहा था, वही करना चाहिए, और फिर व्हेन यू स्टार्ट आपको 1-2 महीने बाद रियलाइज होता है कि ये तो मुझे करना ही नहीं था, किसी और ने कहा इसलिए मैंने स्टार्ट कर दिया। स्टे ट्रू योरसेल्फ। नहीं करना है तो छोड़ दो, जो करना है वही करो, दैट्स इट। 7 एम्ब्रेसिंग लॉस एंड फाइंडिंग स्ट्रेंथ। लाइक बाय 23 मैंने, या फिर आप भी शायद, आप लोगों को खोना स्टार्ट कर देते हो। मे बी इट कैन बी अ फ्रेंड, फैमिली। लोग आपसे दूर होने लगते हैं एंड यू हैव टू बी स्ट्रांग, लाइक इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। उनकी भी लाइफ है, वो मे बी फॉर एजुकेशन के लिए वो शायद इंडिया से बाहर चले गए, कोई कॉलेज उनकी दूर है तो वो वहाँ चले गए, और मे बी इट कैन बी एनी वन, फ्रॉम फ्रेंड टू फैमिली। सबकी अपनी लाइफ है। कोई आपके साथ आपके सर्कल में रहे, नॉट इन कॉन्टैक्ट, आई एम स्पीकिंग के रोज़ आपसे मिलना, रोज़ आपसे बात करना, मे बी मे नॉट बी। वो एक बार दूर चले गए तो वो कनेक्शन धीरे धीरे लूज होगा। वो आपका काम है कि उनको फ़ोन करना, डिस्टर्ब करना एंड बात करना उनसे। नंबर 8 राइट, हाँ ओके। नंबर 8 इज चेंज इज इनएविटेबल। कुछ भी सेम नहीं रहेगा, सब कुछ चेंज होते रहेगा। अगर आपकी प्रेजेंट सिचुएशन में आप, पता नहीं, अब अगर स्कूल जा रहे हो तो एक दिन कॉलेज जाओगे, कॉलेज जा रहे हो तो एक दिन ग्रेजुएट भी हो जाओगे, एंड नथिंग विल स्टे एज इट इज राइट नाउ इन योर लाइफ, इन माई लाइफ। ये मैंने सीखा। लास्ट ईयर आई वॉज मेकिंग दिस अमेजिंग प्रोजेक्ट एंड टुडे आई एम नॉट देयर, आई एम नॉट इन माई कॉलेज, आई डो नॉट गो टू दैट प्लेस एनीमोर, आई डो नॉट टॉक टू दैट मेनी पीपल फ्रॉम माई कॉलेज एनीमोर। यू हैव टू बी ओके विद इट। चेंज इज इनएविटेबल। यू कैन नॉट, आप फोर्स नहीं कर सकते चीज़ों को कि वो एज इट इज़ रहे जैसी पहले थी। एज आई सेड, लोग दूर चले जाएंगे, या फिर आपको कुछ काम आ जाएगा, आपको कहीं जाना पड़ेगा कॉलेज के लिए, मे बी फॉर एनीथिंग। नंबर 9 इज ओवरकमिंग द नॉइस इन योर हेड। लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स यू जस्ट, क्या कहते हैं, रिजल्ट के बारे में इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि आप कोशिश ही नहीं करते हैं कि रिजल्ट कैसा होगा, क्या होगा, गुड होगा, बैड होगा, कितना गुड होगा, कितना बैड होगा। आप एफर्ट्स डालना अपने डे टू डे, जो आपको ग्राइंड करना चाहिए, वर्क करना चाहिए, वो टाइम आप वेस्ट कर देते हो सोचने में कि रिजल्ट कैसा होगा, जबकि वो आपके हाथ में है नहीं। बैठकर बस ये सोचना कि रिजल्ट क्या होगा, सही होगा कि नहीं, मैं ये पढ़ लूँ तो फिर इसका रिजल्ट क्या होगा, वो पढ़ लूँ, जस्ट गिव 100% एंड लेट द रिजल्ट टर्न आउट टू बी व्हाट इट टर्न आउट। सो ये सीखा मैंने कि सोचने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इफ़ यू वांट समथिंग, जस्ट वर्क फॉर इट। आपकी मेहनत अगर 50% है आपकी मेहनत, तो उस लेवल का आपको रिजल्ट मिलेगा, दैट्स इट। 100% मेहनत है, 100% रिजल्ट मिलेगा। इतना मैंने सीख लिया। जितनी मेहनत उतना रिजल्ट मिलेगा, और मे बी मे नॉट बी बैलेंस हो ना हो, बट सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। नंबर 11 इज द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। मतलब सबने सुना ही होगा कंसिस्टेंसी, तो सबको पता है, ये वर्ड सबने सुना होगा, बट आई एम स्पीकिंग ऑफ ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम दैट आई स्टार्ट ए यूट्यूब चैनल। ओके, लेट्स जस्ट कीप इट सिंपल। मैंने जब स्टार्ट किया था, आई हैड ज़ीरो आइडिया ऑफ वॉट आई एम डूइंग, like how to make a video, how to speak to a camera, how to present myself, how to speak, how to do everything. Consistency is what led me to who I am today. I could have been better if I have been more consistent. It is what it is. I am what I am by being consistent. And consistency आपको दिखती नहीं है, it's a long term game, आपको रोज़ करना होता है। मैंने देखा, रिजल्ट देखा कंसिस्टेंसी का, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि दिस इज़ व्हाट आई लर्न, द पावर ऑफ कंसिस्टेंसी। नंबर 12 कनेक्टेड टू लेसन नंबर 11 इज, जो मैंने सीखा, द पावर ऑफ कंपाउंड इफेक्ट। ये मैंने बुक भी पढ़ी लास्ट ईयर। कंपाउंड इफेक्ट एज इन, आप डेली कंसिस्टेंटली वर्क कर रहे हो एंड आपको फिर रिजल्ट नहीं दिखता, बट वो रिजल्ट कितना कंपाउंड होकर आपको 6 महीने बाद या 1 साल बाद आपको रियलाइज हो। एंड जस्ट लाइक टुडे, मैं इतनी इजीली बात नहीं कर पा रहे थे, जैसे कि मैंने कहा लास्ट ईयर, and today I am able to express myself, speak out. So compound effect as in आपके efforts compound होकर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, मेहनत वेस्ट नहीं जाती। It is what I learned. Lesson number 13 is again connected to lesson number 12. Embrace hard work and await your brightest moment. आप सोच रहे हो कि मैं कंसिस्टेंटली काम भी कर रहा हूँ, कंपाउंड इफेक्ट किधर है, वर्क क्यों नहीं कर रहा, वो कंसेप्ट मुझ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, भाई
यू हैव टू वेट. आप रोज मेहनत कर रहे हो, सुबह उठकर आप सेम चीज कर रहे हो, एफर्ट्स, एंड सोते टाइम आप सोच रहे हो कि आज कोई रिजल्ट नहीं मिला, आज कुछ देखने नहीं मिला रिजल्ट. जब रिजल्ट होगा, एंड डेफिनेटली होगा, यू विल सी. ऑल यू हैव टू डू इज के गिव अप नहीं करना है. आप स्लोली मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि 70% एफर्ट्स कर दिए, 50% एफर्ट्स कर दिए क्योंकि रिजल्ट नहीं आ रहा. सो डेली 100% देते रहना इज वॉट मेक्स यू अ विनर. ये मैंने सीखा कि जस्ट बिकॉज रिजल्ट नहीं आ रहा, आप अपना एफर्ट 40% पे कर देते हो, 30% पे कर देते हो. यू हैव टू गिव योर 100%, गिव योर बेस्ट एवरी डे, एंड you will get a defined result. Number 14 is celebrate wins no matter how small. And this is important, I'll say it again. Celebrate wins no matter how small. What happens is हम एक गोल से दूसरी गोल पर जंप कर जाते हैं कि मैं ग्रेजुएट हुआ, मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था. मैं इंदौर गया था, मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था. मैंने फर्स्ट जॉब, फर्स्ट इंटरव्यू जब क्लियर किया, मैंने सेलिब्रेट नहीं किया था. दीज स्मॉल विंस, अगर आपको लगता है कि आपने कुछ एक स्मॉल अचीवमेंट हुआ, कुछ आपके एफर्ट का एक 1% भी आपको अगर दिखा, तो गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, गिव योर सेल्फ अ ट्रीट, गिव योर सेल्फ अ पार्टी, गिव योर सेल्फ डिक्लेरेशन की आई अचीव दिस, आई सेलिब्रेट दिस, एंड ऑफ डिस्कशन. सो सेलिब्रेटिंग इज इम्पोर्टेंट. आपको वरना पता नहीं चलता कि मैंने कुछ अचीव किया भी या नहीं. आपको पता होना चाहिए कि yes I achieved this, I did this. आपको अपनी अचीवमेंट्स का खुद पता होना चाहिए. कोई आकर आपको नहीं बताएगा कि oh you did this, oh excellent, great. खुद सेलिब्रेट करना सीखना ज़रूरी है. ये मैंने सीखा. Okay, so lesson number 15 is the art of negotiation. Being able to speak up about what you deserve, like being able to negotiate your salary, being able to negotiate your boundaries, like this is what you deserve and you will not take anything lesser than that. Being able to negotiate what you think is right for you, what you know you deserve, and it's the most important thing you need to learn. Connected to this is lesson number 16, the power of communication. Being able to convey your thoughts, what you feel is right for you, or this. See, it's when you start communicating, it's when you start having conversation with people, is when they have like a, वो कहते हैं ना कि छाप छोड़ जाना. The moment you start speaking, आप अपनी छाप छोड़ना स्टार्ट कर देते हो. So it's important to know how to speak, like be the manners, the flow, the rhythm, जो भी एक communication, it's not about being able to speak in English. Good communication is much more than that. 17 जो मैंने सीखी वो है कि say hi to more and more people. Say hi to everyone who is in your contact or who is not in your contact. But आप अगर उनको रोज देख रहे हो तो say hi. Just say hi to anyone who just say hi. मैंने when I started working on my first job, I used to say hi to a lot of people. I was being this person who says hi to a lot of people, just hi there, hi, and it led to much more meaningful conversation, number one, and then it led to much more meaningful relationships. Like बहुत सारे दोस्त बने मेरे just because saying hi to a stranger. Like one moment he's a stranger, next moment you know it can be your best friend, life partner maybe, or it can be the best person you hang out with. Saying hi is important. Lesson number 18 is overcomplicating things. You need to stop overcomplicating things. मैं बहुत चीज़ों को overcomplicate कर देता था. I used to just sit and think, जैसे कि मैंने कहा कि connected to previous lessons, but this is something else. Overcomplicating करना एक चीज़ को is like 5% एनर्जी देनी है किसी चीज़ को अगर, तो आप उसको 1005% दे रहे हो. Like it's not important. 5% एनर्जी दो और जिस चीज़ को 100% देनी चाहिए उस चीज़ में अपना 100% डालो. जैसे कि एक स्मॉल टास्क है चाय बनाना. आप सोचोगे कि मैं वर्ल्ड क्लास चाय बनाता हूँ, महाराजा टाइप चाय बनाता हूँ, एंड यू जस्ट कीप ग्राइंडिंग ऑन इट. आप उस चाय को परफेक्ट करने जा रहे हो, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि आपको कहीं और अपना 100% देना चाहिए, 200% देना चाहिए. तो स्टॉप ओवर कॉम्प्लिकेटिंग थिंग्स, जस्ट वर्क ऑन व्हाट मैटर्स. Lesson number 19, express yourself and seek support. Talk to a friend, write a journal, just express yourself. You can record like this yourself, record yourself in a video, or
Speaking to a friend will help you express out, vent it out. Or writing journal is the best way of expressing yourself. Dear diary moments like this happened, that happened, that happened. ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैंने जर्नलिंग स्टार्ट किया एंड इट चेंजेस यू कम्प्लीटली. आपको एग्जैक्टली पता होता है कि डे 14th को मैं क्या सोच रहा था, मेरे लाइफ में क्या चल रहा था, एंड इट लेट्स यू थिंक के ओके आज जो भी हुआ नेक्स्ट डे अच्छा होगा, या फिर उससे नेक्स्ट डे अच्छा होगा, या फिर दिस टुडे आई हैड एक्सपीरियंस दिस एंड दैट. एक्सप्रेसिंग योर सेल्फ इज इम्पॉर्टेंट, वरना आप अपने दिमाग में किसी चीज़ को गोल गोल घुमा कर फ्यूचर को आने से ट्रैप कर रहे हो, आप पास्ट में जी रहे हो. ये मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि एक्सप्रेस कर लिया तो वो थॉट दिमाग से निकल जाता है एंड देन इट मेक स्पेस फॉर द मोर थॉट्स, मोर इम्पॉर्टेंट थॉट्स. नंबर 20 इज पावर ऑफ माइंडसेट. दिस इज अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने सीखी कि माइंडसेट इज इम्पॉर्टेंट. सुबह उठकर 5 से 10 मिनट देना टू थिंक अबाउट व्हाट यू वांट फ्रॉम दिस डे. आज के दिन से, इन 24 घंटों से आपको क्या चाहिए, एंड फिर उसके बाद कंप्लीट 24 आवर्स बस वर्क करना, उस चीज़ को अचीव करना कि दिस इज़ व्हाट आई वांटेड, दिस इज़ आई हैव अचीव्ड. और मे बी उससे ज़्यादा उससे कम आप करोगे, बट एक बार सेट होता है कि इससे हिट करना है आज के दिन. तो दैट इज़ पावर ऑफ माइंडसेट. आपको पता होता है एग्जैक्टली कि कहाँ जाना है, राइट लेना है, लेफ़्ट लेना है. एंड इफ़ यू डू नॉट हैव अ माइंडसेट, आपका डे प्रोडक्टिव नहीं होगा, इफेक्टिव 100% नहीं दे पाओगे आप. 21 इज बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज. Number 1, anything is possible. And number 2, you just have to work for it. Believe in the possibilities as in आप इमेजिन नहीं कर सकते आपका रिजल्ट क्या आएगा. मे बी आपने जो इमेजिन किया वो मिले, या फिर जो इमेजिन नहीं किया उससे ज़्यादा मिले. तो ऑलवेज बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज़ कि हाँ ये भी हो सकता है. आप ये नहीं कह सकते अपने आप को कि यार मेरे तो आई एम ओल्ड, आई एम दिस एंड दैट. जस्ट हैव फेथ, हैव बिलीव इन द पॉसिबिलिटीज़ एंड इट ऑल does happens. Lesson number 22. Lesson 22 is helping others. या मैंने ये सीखा कि हर बार आपको पता ना चले कि किसकी आपकी कितनी ज़रूरत है. यू नीड टू नो, यू नीड टू चेकअप ऑन योर फ्रेंड्स. में आपको अपने दोस्तों को डिस्टर्ब करना ज़रूरी है. रोज़ मैसेज करो, टेक्स्ट करो, या फिर सामने से कोई आए अगर और आपके अंडर है कि मैं हेल्प कर सकता हूँ. यू नो वाई मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं बस सेल्फ सेंटर्ड हो जाता हूँ कभी कभी, क्योंकि हम सब अपना अपना सोचने लगे हैं. सुबह उठकर कोई ये नहीं सोचता कि मैं आज 2 लोगों की हेल्प कर दूंगा, 3 लोगों की हेल्प कर दूंगा. हम यही सोचते कि आज मैं अपने गोल्स, अपने ऊपर कैसे फोकस करूँ, अपने माइंडसेट पर कैसे काम करूँ. सो जब भी मौका मिले बस हेल्प कर देना. मैं आई ट्राई ऑलवेज कि अगर किसी को एक्चुअल में ज़रूरत है. So lesson number 23 is most important. Lesson 23 is life goes on. Last year I was in the college. मैं इसलिए कह रहा हूँ बार बार क्योंकि मुझे मिस होती है कॉलेज. So life goes on का मीनिंग है कि I was being shy in the college. मैं लोगों से बात नहीं करता था, मैं चुप रहता था. मुझे लोगों से बात करनी चाहिए थी. I can only regret this, जो भी मैं बोलने वाला हूँ. मैंने YouTube चैनल स्टार्ट भले कर दिया, बट मैं कंसिस्टेंटली वर्क नहीं कर रहा था अपने ऊपर के लोगों से बात करना, अपने वीडियोस को ज़्यादा बोलना. मतलब मैंने लोगों से बात नहीं की, मैंने लोगों को अपने वीडियो में ज़्यादा दिखाया नहीं क्योंकि मैं शेयर नहीं कर पाया, वो मैंने नहीं किया. एंड लाइफ गोज़ ऑन इसलिए क्योंकि आई कैन ओनली रिग्रेट. लास्ट ईयर मुझे कर देना चाहिए था. आई वॉज जस्ट बिकॉज आई वॉज बीइंग शाय. मैं बस उस टाइम को मिस कर सकता हूँ कि ये भी हो सकता था, वो भी हो सकता था. सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग कि मैं 24th बर्थडे पर मैं इस साल के बारे में रिग्रेट करूँ, आई एम ट्राइंग के आई शुड बी मोर करेजियस, आई शुड एक्सप्रेस माई सेल्फ आउट देयर. एंड नो वन केयर्स, लिटरली नो वन केयर्स कि आपने कल क्या पहना था. आपको खुद याद नहीं आपने परसों क्या पहना था. और ये आई नो कि कहना ईजी है, मैं खुद एक इसके बीच में हूँ. आई हैवंट कम्प्लीटली अचीव दिस. मैं खुद अभी भी सोचता हूँ. आई स्टिल ओवर थिंक अबाउट अ लॉट थिंग्स. लाइफ गोज ऑन, इट्स नेवर द सेम. लास्ट ईयर मैं बस रिग्रेट कर सकता हूँ कि आई शुड हैव डन मोर, आई शुड हैव बीन इवन मोर करेजियस. मुझे इवन मोर पब्लिक व्लॉग बना लेने चाहिए थे. बट इट्स अ जर्नी, अगर
एक ही दिन में सीख जाता है इंसान तो क्या बात होती है. इट्स द जर्नी दैट मेक्स यू लर्न एवरीथिंग एंड स्लोली एंड स्टडीली आई एम लर्निंग के डजेंट मैटर, जस्ट डू इट यार. सो अगर आपको भी कुछ करना है लाइफ में एंड आप ओवर थिंक कर रहे हो कि एक्सक्यूजेस आ रहे हैं आपकी लाइफ में, सो मैं यही कहूँगा कि डजेंट मैटर, जस्ट गो आउट एंड डू इट. और एल्स रिग्रेट रह जाता है बस, जो कि मुझे है. लास्ट ईयर वॉज नॉट टू फार अवे. 2019 2018 वर फार अवे. लास्ट ईयर 2022 वॉज राइट लास्ट ईयर. सो होता है कि अगर मैं ये भी कर लेता वो भी कर लेता तो आज मे बी डिफरेंट हो सकता था. सो इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग लास्ट नेक्स्ट ईयर आई एम गोना ट्राई. जुलाई चल रहा है, 6 months हैं अभी भी इन हैंड, तो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट. Let's go. Thank you so much for watching this video. Please hit the bell, notification bell, and subscribe to the channel. We will make coming to this channel, and thanks so much for watching. Take care. Bye bye.